जो सुखमनी साहिब जी की कथा चल रही है, आप जी उसनूं श्रवण करन दे लई गुरुद्वारे जुड़ बैठे हो। महाराज जी की इस बाणी के अंदर पहली अष्टपदी महाराज जी का उपदेश अते संदेश ये है कि अगर मनुख नाम जपे, अगर उस परमेश्वर नूं याद करे, वो दुनिया तो किहड़ियां वस्तुआं परमेश्वर तो प्राप्त कर सकता है। क्योंकि दुनिया दियां सारियां वस्तुआं दा मालक, सारे खजानियां दा मालक, या फिर दुनिया दे विच जो भी घटना वापरदी है उस दे पिछे जिहड़ा भी कारण वो परमात्मा है। जे असीं पृथ्वी की खोज करिए और इनू डूंघे तल ते खोजते जाइए, धरती नूं खोजीए, फिर अंबर नूं खोजीए, सूरज तो पिछे खोज जाती रहे, जांदियां जांदियां जिथे इस खोज का अंत होएगा वो अंत परमात्मा होगा। इस करके नाम मुढ़ है दुनिया का, सिमरन मुढ़ है। परमेश्वर ये दुनिया का मुढ़ है, उसने इस दुनिया नूं साजिया। महाराज जिहड़ा गुरबाणी दे विच कहिंदे ने, दुई कुदरत साजी है, कर आसन डिठो चाओ। वो आप इस दुनिया के रंग तमाशियां नूं वेख रहे है, और ये जो भी उन्हें खेड बनाया है उस दे हुक्म दे विच ये चल रहे है। अज दी जिहड़ी कथा की आरंभता दे विच जिहड़ी पंक्ति आउंदी है, प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निध। प्रभु दे सिमरन करन दे नाल, परमेश्वर का नाम जपण दे नाल मनुख नूं रिद्धियां अते सिद्धियां की प्राप्ति हुंदी। हुण साध संगत, हरेक मनुख तो यही चाहुंदा है मेरे को दुनियावी तौर पर भी धन होवे। हुण इत्थे सवाल भी है कि नाम जपण दे नाल दुनियावी धन की भी प्राप्ति हो जाती है। इत्थे गुरु जी इहदा भी जवाब देंदे, क्योंकि दुनियावी दौलत, दुनियावी सत्ता और दुनियावी मान इज्जत ये परमात्मा तो बाहर नहीं है, ये उहदे नाम दे विच ही है। निधि का मतलब हुंदा है खजाना। जिवें आपां बैंक दीयां कापियां ते वेखदे हां लिखिया हुंदा बचत निधि, और वो खजाने 9 प्रकार के मन्ने गए हैं। जिदे हीरे ने, चांदी है, सोना है, एवें 9 ये प्रकार ने, 9 टाइप ने ये। अगर कोई मनुख परमेश्वर का नाम जपे उसनूं ये 9 खजाने प्राप्त हो जाते हैं। 18 सिद्धियां गिणियां ने, अपने शरीर नूं छोटा कर लेना, वड्डा कर लेना, बदला कर लेना, उड़ जाना, अणीमा, ये सारियां 18 प्रकार दीयां सिद्धियां ने। ये भी नाम जपण वाले नूं प्राप्त हो जांदियां ने। किड्डी वड्डी बख्शिश महाराज करते हैं। एक बारी बाबा संगत सिंह जी कमालीए वाले
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਤੇ ਭਾਈ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਸਨ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘੱਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਾਧਾਨ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਐਸੀ ਪੰਕਤੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਪੰਕਤੀ ਹੀ ਮਹਾਮੰਤਰ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮੰਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਨੇ। ਉਹ ਮੰਤਰ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਤਰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੀਬੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਦਮ ਲਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਦਿਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ। ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ? ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਇੱਕੋ ਦਮ, ਜਪਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲੋ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਰ ਪਏ। ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਰੰਭ ਤੇ ਹੋਇਆ ਘਰ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ 8-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਰਥਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ।
दिन रात ये पंक्ति का जाप असी करते ही रहे हैं, असी ये पंक्ति छड्डी नहीं। अज कहना मेरे को 2-3 बच्चे ने और मेरे को अज 250-300 के करीब किलियां के करीब जमीन है। पर हुण कहता बाबा जी जमीन तो बड़ी हो गई है, पैसा भी बड़ा हो गया है, हुण इवें दसो, हुण मैनूं ज्ञान भी चाहिए। मैं सोचदा ये तो सब कुछ हो गया, हुण मैं किधर जावांगा कि दुनियावी ज्ञान भी पता लगे, आए कित्थों आ जाना कित्थे है भी पता लगे। तो ये वास्ते पंक्ति दसो। कहते ये वास्ते भी है, कहते बस इस तो अगली ही पंक्ति है। प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध। कहते बस हुण इस पंक्ति का जाप कर, तेनों ज्ञान ध्यान भी हो जाएगा। और साध संगत ज्यों ज्यों गुरु का शब्द मनुख के अंदर चलता रहता है, रोज़ रोज़ देखो एक होर भी हुंदा है। कई बारी जो मनुख नूं बीमारी तकड़ी लगी होए ना, पहली खुराक नाल आराम नहीं आउंदा, कोई 5-4 खुराकां खाउंदा है तो आराम आउंदा है। एवें जो कर्म मनुख के बहुते ही विगड़े होण, बहुते खराब होए होण, फिर एक बारी वाहिगुरू कीतिआं नहीं आराम आउंदा। ये तो रोज़ रोज़ करना पैंदा है, रोज़ रोज़ बार बार अपने मन नूं नाम की भट्ठी में झोंकना पौंदा है, दोबारा दोबारा इनू जपना पैंदा है। ज्यों ज्यों मनुख जपदा रहिंदा है, इहदा मन निर्मल हुंदा जांदा है। जिवें एक पत्थर है, पत्थर दे विच मूर्ति है, उन्होंने थोड़ियां दे नाल घड़ के उहदे विचों मूर्ति प्रगट हो जाती है तो पत्थर, पर जदों तई घड़िया नहीं उदों तई पत्थर है। जिस दिन घड़न बह गए उस दिन मूर्ति बन जाए। मिट्टी उदों तई मिट्टी है जदों तई कुम्हार दे हथ नहीं लगी। जिस दिन कुम्हार दे हथ लगती है, ये घड़े भी बन जाते हैं, ये दीवे भी बन जाते हैं, किन्ना ही समान है, गिलास कप सारा कुछ ही बना देंदा मिट्टी का ही। हरेक मनुख नहीं बना सकता। एवें मन उदों तो ही काला है, उदों तो ही माड़ा है जदों तो ही गुरु के हथ नहीं लग्या। जिस दिन गुरु के कहे हुए मंत्र ते ये जपना ये शुरू हो गया, इस दिन गुरबाणी कहती है भया मनूर कंचन फिर होवै, जे गुरु मिले तनेहा। जे ऐसा गुरु मिल जाए, सड़िया होया मन सोने वर्गा बन जाता है। हुण प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान, हजे तो ही मनुख नूं ज्ञान है दुनिया का, दुनिया दे विच केड़ा देश कित्थे है, केड़ा राज कित्थे है, केड़ा शहर कित्थे है, इसनूं पता है। परमात्मा कित्थे है, उहदी जोत की है, वो रह कित्थे रहे है, ये नहीं पता। और इहदा ज्ञान हजे तई नहीं आया। जदों तई परमेश्वर का ज्ञान नहीं आया, गुरबाणी कहती दूजे सारे पढ़े हुए ज्ञान तेरे खराब ने। बाकी दुनिया दे विच जिन्ना मर्जी सियाणा होए, दुनिया की बाहरी विहारिक विद्या जिन्नी मर्जी होए, पर जदों तई परमेश्वर का नहीं ना पता लग्या, सारी विहारिक विद्या खराब है। महाराज कहते अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत। ज्ञानी भी होए बाहरी तौर पर, पर मृतक कहिए है नानका जे प्रीत नहीं। ज्यों ज्यों मनुख नाम जपदा है, उहदा ध्यान जुड़ना शुरू, हजे तो ध्यान कम जाता है। बिना नाम जपे मनुख का ऐसी गल नहीं ध्यान नहीं जुड़िया, ध्यान तो जुड़िया पर किते होर जुड़िया। आम जिग्यासू की यह शिकायत है, जदों भी मैं नाम जपदा मेरा ध्यान नहीं जुड़ता, बाणी पढ़दा ध्यान नहीं जुड़ता, क्योंकि ध्यान किते होर जुड़िया हुआ है, ये सहजे सहज जुड़ेगा।
एक चीज़ वालों पटना है, दूजे वालों जिवें कोई मनुख माड़ी संगत च पिया होया है, इक्को दिन वो माड़ी संगत चो संत नहीं बन जाएगा, रोज़ रोज़ ध्यान उहदा कुटिया जाएगा। रोज़ रोज़ चंगी संगत विच आके बहेगा, रोज़ रोज़ मन बदलता है, इक्को दम नहीं बदलता। इस करके मनुख का जिहड़ा मन है ये रोज़ रोज़ बदलता है। रोज़ रोज़ ये विकारी भी हो सकता है, रोज़ रोज़ निरंकारी भी हो सकता है, दोवें चीज़ां ने। रोज़ रोज़ परमेश्वर का भगत भी हो सकता है, माया का भगत भी बन सकता है, क्योंकि रोज़ रोज़ मनुख चाहे भावें ना चाहे ये एक ऐसे सागर दे विच बैठा होया है जिथे चारे बन्ने लहरां ही लहरां ने। आ वेखो इड्डी वड्डी जिहड़े मनुख नाम दे विच जुड़ जांदे ने, वो सागर नूं सागर नहीं वेखदे, वो दुनिया नूं भी सागर कहंदे ने। दुनिया नूं महापुरखा ने सागर किया है, गुरबाणी सागर कहती है। महाराज जैता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे। इते चलो दूजी महाराज ने गल की है, गुरबाणी विच महाराज सागर कई बारी शब्द वरतते हैं। मिथन मोह अगन सोग सागर, ये दुनिया भी एक सागर है, ये रोज़ रोज़ लहरां उठदियां ने, और लहरां दे विच रहण वाला मनुख किते गिला होणों बच जाएगा। जे उन्हें गिला होणों बचना है, अपने उत्ते कोई ना कोई शील्ड ऐसी पाउणी पेगी जिहड़ी उन्होंने लहरां तो बचाई रखे। नहीं ये ऐसा मनुख सोचे कोयले की खान विच रह के कपड़े काले ना होण, ऐसा नहीं हुंदा। जे कपड़े काले होण तो बचाउणे ने, उन्होंने कुछ ना कुछ अपने चार दवेरे पाउणा पएगा। ऐसे ही साध संगत दुनिया में है। जे मनुख कहे, गुरबाणी कहती है, कहते ये दुनिया दे विच पंकज मोह पग नहीं चल है, हम देखा तह डूबी। हले दुनिया डुब रही है सागर विच। हुण गुरबाणी महाराज जी ने पूछे, महाराज कित्थे डुब रही है? तन करके नहीं डुब रही, मन करके गर्क हो रही है। रोज रोज तन करके जिहड़ा डुबदा है उन्होंने तो बचाउण वास्ते लोकी तराक हुंदे ने। एवें महाराज की बाणी कहती है, तू मन करके रोज़ रोज़ डुब रहा, मन रोज़ रोज़ वकारी हुंदा जा रहा। जे इहदे ते नाम नहीं चढ़ रहा, ये रोज़ रोज़ वकारी हो रहा है। इनू वकारी करन दी लोड़ नहीं, ये रह ही ऐसे सागर च रहा है जिथे चारे बने है ही वकार ने, होर कुछ है ही नहीं। इस अज दे समय नूं कलयुग तां कहा गया है, चारे बन्ने कला ही वरत रही है, होर कुछ है ही नहीं। महाराज ने तो बाणी दे विच इस कलयुग का चित्रण भी किया है। रन्ना होइयां बोधियां पुरुष होए सयाद, सील संजम सुच भन्नी खाना खाज आहाज। जिन्होंने महाराज ने शब्द किया, कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार। एक रेखा भी खिंची है महाराज ने अज दे समाज की। ये दुनिया दे विच केड़ियां केड़ियां लहरां ने जिहड़ियां मनुख नूं रोज़ डुबो रहीआं ने। और ये समुंदर दे विच डुबदे हुए समुंदर विच भी हस रहे हैं। हजे भी ये सोच रहे हैं शायद मैनू सतसंगत की लोड़ नहीं है, मैनू गुरु की लोड़ नहीं है, मैं अपने मन की मत करनी है, गुरु की की लोड़ है। क्यों? हजे इनू डुबदा होया प्रतीत नहीं हो रहा। शरीरिक तौर पर दुनिया डुबे इन्हां अखां नाल विख जाती है। जे वेखना ये दुनिया मानसिक तौर पर डुब रही है, अध्यात्मक तौर पर डुब रही है, वो वास्ते अंदर दियां अखां चाहिए, गहरी सूझ चाहिए है, गहरी समझ चाहिए। ध्यान तो मनुख का जुड़िया होया है, पर जुड़िया किते होर है। हुण उहनूं पुट्टना पैंदा है, और एक दिन नहीं पुट्टिया। बुल्ले शाह ने कहा है, बुलिया रब दा की पाउणा, इधरों पुट्टना ते उधर लाउणा। इन्नी गल कहंदे, रब दा की पाउणा है? मन नूं दुनिया वाले पासियों पुट्टना है, दूजी साइड चला जाना है। ये दुनिया वो सागर है जिहदे विच काम क्रोध लोह मोह दियां लहरां रोज़ उठदियां ने। गुरुद्वारे आउणे आ, किन्ने प्रकार के दृश्य मनुख नूं वेखदे ने। अपने काम ते जाने आ, कोई बिजनेस करदा तो किन्नी प्रकार की किते कला वरत रही है, किते कोई माड़ा कर्म हो रहा। हुण उस चीज़ नूं वेख के
जे तो कोई ਗਿਆਨੀ है अपने मन ਨੂੰ संभाल ਲੈਂਦਾ, नहीं मन भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ तो कोई नाम जपण वाला है, ਜਿਹਦੇ अंदर धीरज है, वो तो अपने आप ਨੂੰ संभाल ਲੈਂਦਾ है। नहीं ऐसा नहीं है अग दे कोल रहिए तो सेक ना लगे। महाराज ने बाणी च क्या, यह संसार विकार संशय में, ये दुनिया विकारां दे संशय विच है और ये रहने वाले इस संशय तो बच नहीं सकते। और ताई करके मनुख इस सागर दे विच डुबदा है, रोज़ रोज़ अपने कर्म विगाड़दा जांदा है। रोज़ रोज़ ये कर्म घट रहे ने, रोज़ रोज़ ये गुण भी घट रहे ने। इस करके असीं वेखदे हां दुनिया के उत्ते रोज़ रोज़ क्रोध वधी जा रहा है, संतोख घटदा जा रहा है, शांति घटदी जा रही है। कारण की है? गुरुद्वारियां तो, मंदिरां तो, मस्जिदां तो मनुख का रुझान घट गया। इहदा आउणा भी है, ये गुरु तो सिक्ख्या नहीं लैनी चाहुंदा, गुरु नूं देना चाहुंदा है। गुरु इहनूं कहंदा तैनूं मैं सारा कुछ दे देंगा पर चल मेरे अनुसार। कहंदा नहीं, जो मैं लैण लई आया वो दे। मार के नहीं, तैनूं मैं देंगा पर मेरे अनुसार से चल। अनुसार नहीं चलना, मेरे अनुसार, अपनी मन दे मत दे अनुसार यदि इच्छा है वही ये रब तो पूरी करवानी चाहता। और ये नहीं है रब पूरी नहीं करदा। जिन्ने भी साडे कर्म ने उन्हां कर्मां दे अनुसार जो असीं मंग रहे उन्हें दे देना है। जे तो ये कहिए रब नूं परमात्मा मैनू ये दुनिया बारे कोई ज्ञान नहीं, हे वाहिगुरु जी, हे गुरु साहिब, मैनू ये दुनिया बारे कोई नहीं पता किहड़ी चीज़ चंगी है, इनू कहंदे ने शरण पैना। मैनू नहीं पैना, मेरी इच्छा तो है मेरे को वड्डा मकान होए पर मैनू नहीं पता मैं उहदे विच सुखी भी रहांगा कि नहीं। इस करके मेरी अरदास ये है, मैनू वो दई जो तेनू लगे मेरे वास्ते चंगा होएगा। जे एक पुत्र एवें अपने पिता नूं कहे, पिता सोचता है बड़ा सियाणा बच्चा, एवें कहे। हुण एक पुत्र जिद फड़ लए, मैनू तो आ चाहिदा, पिता कहता आ फड़ा के इहनूं दफा करो, एवें कहंदा। आपां गृहस्थी लोग आ, असीं वेखदे आ बच्चा ज़्यादा जिद्दी फड़ ले, पिता नूं पता भी है ये चीज़ ये वास्ते चंगी नहीं, बार बार उन्होंने कहता भी है ना, पर फिर भी वो दोबारा जो जिद करी जाए वो कहता इनू फड़ाओ तो साइड च करो, एवें कहते। एवें गुरु भी है, जिन्ने असी कर्म करते हैं साडे कर्मां दा वो फल देंदा है। जदों एक तो गुरु दे अगे अरदास करनी, जी की बिरथा होए गुर पै अरदास कर, एक तो अरदास है, एक ऑर्डर है। और जिन्ने क साडे कर्म हुंदे ने उन्हां अनुसार महाराज बाणी दे विच कहिंदे ने, जितड़े फल मन बाछीए तितड़े सतगुर पास। जो जो भी असी सोचते हैं वो गुरु दे कोल है। और जिन्ने क साडे कर्म बनी जाते हैं गुरु उन्हां अनुसार सानू दे भी जाता है। वक्री गल है, जदों तई कर्म पूरे नहीं होंदे उदों तई वो चीज़ मिलती भी नहीं। और महाराज कहंदे ने प्रभु दे सिमरन दे नाल ज्ञान पैदा हुंदा है, ध्यान पैदा हुंदा है। और ध्यान इन्ना गहरा हो जाता है, ये ध्यान लखां आकाशां ते चला जाता है। ये ध्यान इन्ना गहरा हो जाता है, शरीर दे विच की है इस चीज़ की मरमान मर्यादा ये सारी समझ जाता है। रब दा नाम जपे। अगे महाराज कहंदे ने प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, तेनों अड तो कोई पूजा करन दी लोड़ नहीं, सिर्फ रब दा नाम लई चले, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही सारे जप आ जाते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही तप आ जाता। अड तो कोई जप तप करन दी लोड़ नहीं, सिर्फ रब दा नाम लई चले, यही जप तप। प्रभ कै सिमरन बिन सै दूजा, ये थोड़ा जा समझण दी लोड़ है। प्रभु का जो मनुख सिमरन करता है ਉਹਦੇ अंदरों दूजी आस मुक जाती है। और ये दूजी आस हरेक मनुख नूं, जिन्ने मनुख दुनिया ते जिउ रहे ने, हरेक मनुख दुनिया की आस से जिउ रहा है, रब की आस से कदे कदे कोई विरला मनुख जिउंदा है जिहड़ा कह दिंदा है मैं ताण दीवान तू है मेरे साहिब। ये कोई विरले ने। मनुख ते मुश्किल आए सब तो पहला उन्होंने याद अपना वो सका संबंधी आउंदा है जिहदे कोल दुनियावी तौर पर बहुत कुछ है। कोई ऐसा मनुख है जिहदे ते मुश्किल बने
सब तो पहला अपने सब तो वड्डे रिश्तेदार गुरु नूं याद करदा विरला। गुरु कोल ते उदों आउंदा है जदों समाजिक तौर ते सारे इहदे झगड़े झमेले नहीं निबड़दे, फिर अंत दे विच कहंदा चलो गुरु कोल भी अरदास करा के वेख लईए, शब्द वरतदे ने वेख लईए। अंत दे विच गुरु दा दवारा इहदे विच अंत दे विच है। जिवें मैं आप जी के सामने एक उदाहरण रखा, द्रौपदी श्री द्रौपदी दुशासन की सभा दे विच, दुर्योधन हरान की सभा में दुशासन उहदा चीर हरण कर रहे हैं, कपड़े ला रहे हैं। द्रौपदी ने पहला सब तो पहला जदों द्रौपदी ने उन्हें खिंच के लिया वालों तो, द्रौपदी सोचती है इन्हें मैनू वालों तो फड़ ते लिया, पर इनू पता उदों लगेगा मेरे ते पंज पंज ते पति ने, सारे वड्डे वड्डे सूरमे ने, इनू हुण जांदिया पता लगेगा, उस सभा दे विच इनू दसणगे जांदे। द्रौपदी गई जाके उन्हें अर्जुन हरां दी अखां च वेख्या, अर्जुन हरां ने नीवियां पा लईआं, उन्हें सोचा इत्थे कुछ नहीं, ये मेरी इज्जत असमत नहीं बचा सकते। दूजे तौर ते वो श्री भीषण पितामह द्रोणाचार्य सारे बैठे ने, उन्होंने याद करती है, उन्हें भी नीवां पा लियां, कहते साड़ी भी हुण इत्थे कोई वाह नहीं चलती। तीजे पद्धर ते फिर कृष्ण जी नूं याद करदी, वो प्रगट होए, उहदा चीर हरण बचाया। हुण द्रौपदी एक गल कृष्ण जी नूं कहंदी है, कहंदी हे श्री कृष्ण मैं तुहानूं याद किया, मेरे वस्त्र ला रहा सी, तुसीं बड़ी लेट आए। श्री कृष्ण कहंदे ने द्रौपदी तू मैनू लेट याद ही लेट किया तां मैं लेट आया, जे तू किते पहले नंबर ते याद कर लैंदी मैं पहले नंबर ते आ जाना सी, पर पहला तैनू अपने उत्ते माण सी अपने पति ते, दूजा तैनू माण सी गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह जिन्ने भी उत्थे बैठे सन सारियां ते, तीजे नंबर ते तू मैनू याद किया, तीजे ते मैं आ गया। मनुख दे विच दूजा दुनिया की आस बनी रहिंदी है, इस करके रब कम उदों ही सवारदा जदों सारियां आसां निकल जांदियां ने, क्योंकि ऐसा ही है बाणी ते कहंदी है मुश्किल विच कोई विरला ही है नाल खड़दा, दुनिया ते पहले नंबर ते भज जांदी है। बाणी कहंदी है मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध, जेड़े गुरु दे नाल नहीं जुड़े हुए, जिन्हां दा कोई गुरु नहीं कोई परमेश्वर नहीं, जेड़े रब नूं याद ही नहीं करते, कदे गुरबाणी नूं समझिया नहीं, उन्हां दे नाल जिहड़ी दोस्ती बना लई है, वो दोस्ती एक गल याद रखी सदा चलण वाली नहीं। क्यों? वो दोस्ती खड़ी है धन दे उत्ते, जदों ते धन है उदों ते दोस्ती है, जिस दिन धन चला जाएगा उस दिन वो मनुख भी भज जाएंगे। मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध, जिचर पहनण खावणे, जदों ती पाउण खाण दा वेला है, जिचर पहनण खावणे तिचर रखण गंढ, उदों ती फिर रिश्तेदारी रहिंदी है। अगे महाराज कहंदे ने जित दिन कछू ना होवई तित दिन बोलण गंध। ओही लोग जेड़े नाल बह के खांदे पींदे सी ओही कहंदे ने सारा कुछ ही जाड़ लिया, एवें कहंदे इहदी गलती है, इहदे कोल दिमाग नहीं है। वो लोग जेड़े नाल रहण वाले, नाल खाण पीण वाले, नाल घरां च आउण जाण वाले, बाणी कहंदी उस दिन वही गंद बोलदे, उस दिन वही मंदा बोलदे ने। ये गुरबाणी मनुख नूं ये समझाउंदी है, जे तूं दोस्ती भी लाउणी है घट्टो घट्ट वेख के किसी गुरमुख नाल रिश्तेदारी बनाई। प्रभ कै सिमरन बिन सै दूजा, मनुख दे अंदर दा दूजा भाव मिट जाता है। महाराज ने गुरबाणी में कहा भी धर जीअड़े एक टेक तू, जे तू दुनिया दे विच रब तो कुछ लैना है फिर पहली आस ही उहदी रख, धर जीअड़े एक टेक तू लाहे विडानी आस, दूजियां आसां सारियां ला दे। नानक नाम ध्याइयै कारज आवे रास, तेरा कारज रास आ जाएगा। जिवें महाराज गुरु अर्जन साहब जी के टाइम भी एक सिख की गाथा आउंदी है। एक सिख ने किसी को पैसे लए, हुण पैसे उन्हें ले लए, लैके ते रख दिते, किते भुल गया,
ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਲਏ ਹੁਣ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਚਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੇ 'ਚ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਭਾਵ ਇਸ ਸਾਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, 70 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਸਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਆਸ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੜਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੀ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਸਰਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟੁੱਟਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70 ਤੋਂ 80 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਗ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਈਏ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਗਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਆਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸੀਮਿਤ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਐਸਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਏਗਾ ਸਗੋਂ ਉਨਾ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਹੀ ਲੈ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤੋ ਲੂਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ, ਇਹ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਡੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਗਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪੀ ਚੱਲ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਪਦਾ ਤੇ ਹੈ, 15 ਮਿੰਟ ਜਪਦਾ ਹੈ, 20 ਮਿੰਟ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਧਰੂ ਜਾਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੈਸੇ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰਮਝ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰੂ ਭਗਤ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ ਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਰਾਜ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਰਿਆ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਜੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਧਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਜੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਆ, ਅੱਧੇ ਦਾ ਤੇ ਆਫਰ ਆਈ ਗਈ, ਹਜੇ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਮ,
अजे तुरे ही हाँ। साध संगत कई बारी असी नाम जपण की सोचते ही हाँ, सोचण दे नाल ही काम ठीक हो जाते हैं, कई बार सोचण नाल ही, क्योंकि शुभ भावना दिमाग में आ गई। कई बार सेवा की नहीं, सिर्फ शुभ भावना आ गई, मैं करनी है, आ गई, इन्ने च ही हो गया। जिवें असीं कई बार अखंड पाठ साहिब रखाउने हाँ, पहला शुभ भावना आ जाती है, मैं रखाउणा है, हुण वो जिहड़ी भावना आ गई है वो कर्म जुड़ जाते हैं, तां ही तो मनुख के कारज सफल होंदे ने, कर्म जुड़ जाते हैं नाल आठ ते। एडा महान यज्ञ करवाना, वो कर्म जुड़ जाते हैं। हुण महाराज कहते प्रभ कै सिमरन दरगाह मानी, नाम जपण वालियां नूं दरगाह विच भी मान की प्राप्ति हुंदी है। रे रे दरगाह कहे न कहू, आओ बैठ आदर शुभ देव। हुण महाराज अगला गुण गणाउंदे ने, प्रभ कै सिमरन होए सो भला। उन्होंने पता लग जाता है जो कुछ भी ये चल रहा है रब की खेड़ है, जो कुछ भी वो कर रहे हैं चंगा ही कर रहे हैं। जो तुद भावै साई भली कार, ये उन्होंने पता लग जाता है। फिर अंत दे विच महाराज कहते ने, ये महाराज ने जिहड़ी रमज बड़ी डूंगी रख दी है, से सिमरहे जिन आप सिमराए। बस ये गल महाराज ने अंत च कही है, नाम जपाउंदा भी उन्होंने जिन्हां ते आप कृपा करे। नानक ता कह लागों पाए। गुरु नानक साहब कहते ने, जेड़े नाम जपते ने मैं उन्होंने दे पैरी लगदा। देखो किड्डी महाराज की निमरता, जिन्हां दे अंदर प्रभु की बंदगी आ गई है, परमेश्वर का नाम आ गया है, महाराज साहब कहते ने मैं उन्होंने दे पैरी लगदा। बड़ी बारी महाराज ने बाणी च किया, जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिक्की, आप जपै अवरह नाम जपावे। किन्नी बारी महाराज किया। हुण परमेश्वर तो ये मंग के जाइए, परमेश्वर किन्ना कुछ सानू पता लग गया है, किन्ना कुछ है रब दे नाम विच। इस करके फिर महाराज ने ताई ते बाणी च कहा है, मैं कई बारी सोचदा हुंदा सी, महाराज ने ये शब्द ऐड किया है, मंगना मंग नीका हर जस गुर ते मंगना। जे गुरु तो मंगना है हरि दा जस मंगो। हुण महाराज ने यह भी दस दिया, जे तू हरि दा जस मंग लेगा तेनों अड्ड तो धन मंगण की लोड़ नहीं, धन उहदे विच ही आ जाना है। तेनों अड्ड तो कुछ मंगण की लोड़ नहीं। सुखमणी साहिब की पहली अष्टपदी पढ़ लीए, ये पंक्ति की व्याख्या उत्ते है। नाम जपण का मतलब ये पूरा पैकेज ही है, उहदे विच सारा कुछ ही है। अड्ड अड्ड चीज़ां मंगण की लोड़ नहीं, नाम मंग लीए सारा पैकेज ही हत्थ विच आ जाता है, सारा कुछ ही पता लग जाता है। ये 80 के करीब 70-80 के करीब महाराज ने अड्ड अड्ड तरीके नाल दस्सिया है की नाम दे विचों पैदा हुंदा है, की मनुख नूं मिलदा है। सो इस करके गुरु दे कोलों जे सब तो वड्डी वस्तु मंगनी है, गुरु ने कही है, गुरु जे तुसीं त्रुठे हो किरपा करियो मैनूं नाम की दात बख्शो, क्योंकि नाम की दात दे विच सारा कुछ ही आ जाता है। जिवें कोई बीबी साखी आउंदी है, किते शिवजी जी प्रगट होए, बीबी नूं कहंदे एक ही चीज़ मंग ला जिहड़ी मंगनी है। वो कहंदी है भी मैनूं इवें लगदा है, कहंदे मैं सोने की मधाणी दे विच ਉਹ ਰਿੜਕ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਰਿੜਕਣਾ ਰਿੜਕ ਰਹੀਆਂ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀਓ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਅਮੀਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਗ ਨੀਕਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਲਏ
ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਡੀ ਮਹਾਨ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।